वॉइस क्लियर आ रही है मेरी? बोलिए क्लास, रिस्पॉन्ड करिए। तो हम बात कर रहे थे कि हाउ मेनी ब्रांचेस ऑफ द गिवन रूट लोकस आर गोइंग टू बेसिकली एंड अप एट 0 एंड हाउ मेनी ऑफ देम आर गोइंग टू एंड अप एट इनफाइनाइट। सो यहाँ से मेरे पास बेसिकली ट्रांसफर फंक्शन देखते ही आपको पता चल जाएगा कि हाउ मेनी ऑफ देम आर गोइंग टू टर्मिनेट एट 0। बेसिकली हम जैसे देख सकते हैं यहाँ नंबर ऑफ जीरोस जो है m इज इक्वल्स टू 3, n इज इक्वल्स टू 2, so number of poles, number of branches terminating at basically what infinite is equals to 3, sorry, this is 3, this is 2, ulta ho gaya. So this is going to be 3 minus 2 and that is going to be 1. Clear ho gaya? Clear ho gaya? क्लियर हो गया? तो दिस वाज आवर रूल नंबर 2। अभी देखते हैं हम लोग जो हमारे पास, सॉरी, रूल नंबर 3 है। रूल नंबर 2 में किसी को कोई कंफ्यूजन? Let us talk of rule number 3. So what says rule number 3 कि मेरे पास a point on real axis, a point on real axis lies on the locus if the number of open loop poles plus the number of zeros on the real axis to the right of this point is odd. Sorry. Odd. तो बेसिकली इसमें 2 पॉइंट हम लोग को कंसीडर करना है जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दैट इज बेसिकली क्या है मेरे पास। तो वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए, दिस इज राइट और ऑड। ठीक है, तो इसको देखते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए, इसी को लेते हैं हम लोग ये एग्जांपल। तो मेरे पास देखिए पोल्स की लोकेशन क्या है। लेट अस से दिस इज द फर्स्ट पोल, k is equals to 0,
और k इज इक्वल्स टू -2। अब इसके बीच का पोर्शन जो है 0 से -2 के बीच का पोर्शन, वो क्या हो रहा है, वो लाई कर रहा है रूट लोकस में। तो आप देखिए, सबसे पहली बात हम लोग कंसीडर करते हैं, जो पॉइंट्स हैं उसको कंसीडर करते हैं। सो दिस इज योर पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी। अब ए पॉइंट के पहले रियल एक्सिस है सिग्मा एक्सिस प्लस सिग्मा एक्सिस, सो इज इट गोइंग टू लाई ऑन द रूट लोकस? कैसे चेक करेंगे? We will take before to the point of A, how many poles plus zeros are lying over there. Number of poles, यहाँ पे मैं बात करूं तो number of poles plus number of zeros is equals to 0. And 0 is a even number basically. ठीक है? We will consider point, let us say this is points, मैं यहाँ पे consider कर रहा था, this point was C. At that particular point I was checking out that is that portion of basically real axis is going to lying on the root locus or not. Let us take point D. अब D की जब मैं बात कर रहा हूँ at D, so this is at C, let us take at D. So what is going to happen? The number of poles, that is n plus m is, देखिए मेरे पास m is 0 but n is 1, so this is going to be 1 and that is odd. On the right, we are checking on the right of point D basically. Let us take another point on this same real axis which is lying at, let us say this is E point. So E point की अगर मैं बात करूं at E, what is going to happen कि number of poles plus number of zeros, let us check it out. So what is the number of zeros? That is going to be 0, but the number of poles on the right of point E is going to be 2 plus 0, so that is going to be 2, that is going to be again even. So we can check it out that at point C the number of poles plus number of zeros was 0, that is even number, whereas at point E the number of poles plus the number of zeros on the right is 2, so that is again a even number. For point in between the line segment A and B, if we check that the number of poles on the right of that point D, we find out that the number of poles plus the number of zeros is 1, and that is an odd quantity. So we can say that the line in between point A and point B is going to be the part of the root locus as we have drawn. ये क्लियर हो गया? बोलिए, रूल थर्ड क्लियर हुआ? देखिए एक एक रूल क्लियर करते चलिए, क्योंकि अगर आप ये अभी नहीं क्लियर करेंगे तो जब आपको ड्रॉ करने बैठेंगे तो आपको कुछ भी नहीं क्लियर होने वाला। क्लियर हो गया? बोलिए थर्ड पॉइंट, रिस्पॉन्ड करिए क्लास। थर्ड पॉइंट क्लियर है? किसी को ना क्लियर हो तो बताइए आप लोग। नो सर, मतलब सर इसमें समझ में नहीं आ रहा, नंबर ऑफ पोल्स एंड नंबर ऑफ जीरो कैसे लिए कैसे जा रहे हैं ये? अरे ये भाई देखो, अभी दिखाता हूं मैं। यहाँ पे देखो ट्रांसफर फंक्शन था मेरे पास g ऑफ s h ऑफ s, तो नंबर ऑफ पोल्स कितने हैं? नंबर ऑफ पोल्स इज 2, नंबर ऑफ जीरोस 0। ठीक है, तो अब जब मैं अब एक एक पॉइंट ले रहा हूं, सी पॉइंट पे देखो नंबर ऑफ जीरोस तो 0 ही रहेंगे। अब इसके राइट में देखो कोई पोल लाई कर रहा है सी पॉइंट के राइट में, दिस इज राइट, मेरा राइट और आपका राइट सेम है शायद, मोस्ट प्रोबेबली, हाँ यस सर सेम है। ठीक है, तो क्योंकि बोर्ड ब्लैक बोर्ड पे चेंज हो जाता है ये, तो अभी होता क्या है कि सी के अगर राइट में देख रहा हूं तो नंबर ऑफ पोल्स इज 0 एंड नंबर ऑफ जीरोस इज 0। क्लियर है? यस सर। अब डी पॉइंट को देखो, डी पॉइंट, इफ आई एम गोइंग टू टेक अप डी पॉइंट, डी पॉइंट के राइट में जो नंबर ऑफ जीरोस है वो तो 0 ही है,
और ए यस पॉइंट सर, जो एक है पोल लाई है। कर रहा है, वो कब तक 1 रहेगा, जब तक मैं बी पॉइंट पे ना पहुंच जाऊं। क्लियर हुआ। ओके सर। वो तब तक ऑड रहेगा जब तक मैं ए से बी पॉइंट तक ना पहुंच जाऊं। जहां मैं बी पॉइंट पे पहुंचा, मेरे पास नंबर ऑफ पोल्स ऑन द राइट दैट विल बी इक्वल्स टू 2। तो उसके बाद का पार्ट 2 कंटिन्यू करेगा। इस वजह से जो हमारे पास लाइन है बेसिकली ई पॉइंट जो आ रहा है, दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ बेसिकली जो रूट लोकस है। ओके सॉरी, कहाँ गया। सर अगर ई पॉइंट के राइट में देखा है तब भी तो 0 और 2 लाइक कर रहे हैं उसके दोनों पोल। हाँ तो सम ऑफ नंबर ऑफ पोल्स प्लस सम ऑफ नंबर ऑफ जीरो शुड बी ऑड। देखो, ध्यान रखो, ये इसीलिए मैंने बोला टू द राइट, एंड दैट शुड बी ऑड। अगर वो इवन है, दैट मीन्स दैट पार्ट ऑफ द रियल एक्सिस इज नॉट द पार्ट ऑफ रूट लोकस। यही तो बताने की कोशिश कर ओके रहा है सर। रूल थर्ड। ओके। क्लियर हो गया सबको। राइट साइड में देखना है हमको, नंबर ऑफ n प्लस m शुड बी इक्वल्स टू 2k प्लस 1। क्लियर हो गया, वेयर k कैन बी 0 1 2 टिल इंफिनिटी। ठीक है, राइट ऑफ द पॉइंट जिस पे मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं, बेसिकली जिस पॉइंट पे मैं ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहा हूं, उस पॉइंट पे राइट में मुझे देखना है कि होल्ड करना है बेटा आप लोग 1 मिनट, मैं अभी कंटिन्यू कर रहा हूं, तब तक आप लोग तीनों पॉइंट रिवाइज करें।
वॉइस क्लियर आ रही मेरी? वॉइस क्लियर आ रही मेरी? यस सर। ठीक है, तो थर्ड रूल क्लियर हो गया सबको? बोलिए। Yes, So sir. if let us take an example. I have जो मेरे पास ट्रांसफर फंक्शन है, द गिवन ट्रांसफर फंक्शन इज के, मेरे पास है दिस इज के इंटू एस प्लस 1 इंटू एस प्लस 2, so this is going to be s into s plus 3 into s plus 4. अब इसके लिए बेसिकली मुझे डिफाइन करना है कि मेरे पास कहाँ कहाँ होंगे पोल्स और कहाँ कहाँ बेसिकली कौन सा पार्ट लोकेट करेगा और कौन सा पार्ट लोकेट नहीं करेगा। निकालिए इसको, देखिए आप खुद निकाल के देखिए। तो देखिए यहाँ पे मेरे पास बेसिकली OLTF मैं निकालूं, OLTF जो आ जाएगा दैट इज GS into HS and that is equals to unity feedback system है, तो K into S plus 1 into S plus 2 upon S into S plus 3 into S plus 4। ये हम लोग ट्रांसफर फंक्शन लेंगे रूट लोकस बनाने के लिए। तो अभी हम लोग के पास इसके लिए हम लोग रूट लोकस देखते हैं हमारे पास पोल्स क्या है। फिर से मैं लिख देता हूँ इसको, जो है मेरे पास ट्रांसफर फंक्शन दिस इज गोइंग टू बी K इंटू S plus 1 S plus 2 divided by S into S plus 3, this is S plus 4. So what is going to be the root locus का जो पोल्स होंगे सबसे पहले अगर मैं बात कर रहा हूं तो where are the poles, first pole is lying at 0, S is equals to 0। मेरे पास this is S is equals to 0, फिर S is equals to -3 पे लाई कर रहा है, so I'll be having at S is equals to -3। उसके बाद फिर है S is equals to -4 पे, so this is S is equals to -4। जीरो की बात कर लेते हैं, what is the zeros of the given system, this is at -1, so I have a certain zero at S is equals to -1। उसके बाद फिर मेरे पास क्या है at -2, I have another zero at -2। so what will happen कि मेरे पास देखिए अब कैलकुलेट करिए कि नेम कर लीजिए दिस इज ABCDE। तो आप डिफाइन करिए कि मेरे पास AB विल लाई ऑन द रूट लोकस, BC लाई करेगा कि नहीं करेगा, और फिर BC के बाद CD DE and EF। let us take this as point F, so EF ये डिफाइन करिए अब मेरे को ये रूट लोकस में लाई करेंगे कि नहीं करेंगे। तो स्वराज क्लास में हो? श्रेया सिंह आज जो बेटा रिप्लाई नहीं करेगा उसकी मैं अटेंडेंस काट दूंगा। बोलिए श्रेया सिंह क्लास में है? यस सर। बताओ बेटा AB लाई करेगा ऑन बेसिकली रूट लोकस की नहीं लाई करेगा?
शुभम शर्मा, शुभम शर्मा यस सर। बताओ बीसी, बीसी लाई करेगा कि नहीं लाई करेगा? सौरभ सिंह, यस सर। सीडी बताओ लाई करेगा कि नहीं करेगा? स्वराज सिंह, बेटा माइक ऑन करो अपना। स्वराज सिंह, रीज्वाइन करो बेटा, तुम्हारा माइक नहीं आवाज आ रहा है। विशाल राय, यस सर। बताओ डी लाई करेगा ऑन रूट लोकस कि नहीं लाई करेगा? नहीं सर, नहीं करेगा। डी नहीं लाई करेगा। श्रेया बोलो बेटा, ए भी लाई करेगा ऑन द रूट लोकस कि नहीं लाई करेगा? सर नहीं करेगा। अच्छा ये भी नहीं करेगा। और बोलो सौरभ, बीसी लाई करेगा। कौन बोल रहा है? शुभम बोल रहा है कि सौरभ बोल रहा है? शुभम सर बीसी लाई करेगा। बीसी लाई करेगा। अच्छा सीडी, सौरभ यस सर। बताओ सीडी लाई करेगा कि नहीं लाई करेगा? बोलो भाई, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। स्पर्शी यस सर। बताओ ए भी लाई करेगा कि नहीं लाई करेगा? नो सर। नहीं लाई करेगा। नो सर। अच्छा बीसी, यस सर। अच्छा बीसी लाई करेगा। आर्श, यस सर। ए भी लाई करेगा। यस सर। अच्छा बीसी, सर बीसी नहीं लाया करेगा। सीडी, सर ये लाया करेगा। डीई, सर ये भी लाया नहीं करेगा। ईएफ। सर ये लाया करेगा। आप लोग को सबका आंसर मिल गया? ये आप लोग क्लास में होते हुए भी क्लास में नहीं है, और आप लोग के एग्जामिनेशन मुझे लगता है कि ज्यादा ही पास में है। तो पढ़ाई करनी है कि नहीं करनी है वो आप लोग डिसाइड कर लीजिए। अभी मैंने बताया कि वी हैव टू चेक आउट द नंबर ऑफ पोल्स टुवर्ड्स द राइट। बेसिकली आई विल टेक अ सर्टेन पॉइंट, लेट अस से जो मैंने ड्रॉ की है लाइन, अब इसके राइट में मुझे देखना है, तो आई हैव ओनली वन पोल। तो अगर मैं बात कर रहा हूं ए बी की, तो बी तक जब तक मैं नहीं पहुंचा हूं, तो हाउ मेनी पोल्स आर लाइंग ऑन द राइट? दिस इज द राइट। So only one pole is lying on the right of the point B, and that is a odd quantity. तो कैसे स्पर्शी नहीं लाई कर रहा है ये? बोलो स्पर्शी और श्रेया, आंसर करो थोड़ा मेरे को। इसका मतलब रूल 3 आपको क्लियर ही नहीं है। फिर से देख लो, रूल 3 ये बोलता है कि जिस पॉइंट को मुझे चेकआउट करना है कि it is going to lie on the root locus or not, I will check out the number of poles plus number of zeros towards the right of that particular point. अगर वो odd आ रहा है then it will lying on the root locus, अगर वो even आ रहा है then it will be not lying on the root locus. तो AB will be lying। अब अगर मैं CD की बात, सॉरी BC की बात करूं, तो द नंबर विल बी, यहाँ पे जैसे ही मैं पहुंचूंगा देन द नंबर ऑफ पोल्स एंड जीरोस, A पे पोल है, B पे जीरो है, दैट इज गोइंग टू बी 2।
So this is one pole. This is one pole plus 1 0. उसके बाद फिर आएगा वन पोल प्लस 1 0 प्लस 1 0. उसके बाद क्या आएगा, वन पोल प्लस 1 0 प्लस 1 0 प्लस 1 पोल. और लास्ट में क्या आएगा, ऋतुपर्णा, ऋतुपर्णा, ऋतुपर्णा क्लास में हो? वॉइस आ रही है मेरी ऋतुपर्णा? यस सर। बोलो बेटा, ईएफ में कितने पोल्स कितने जीरो आएंगे? स्क्रीन विजिबल हो रही है ना? नंबर ऑफ पोल्स और जीरोस टुवर्ड्स द राइट ऑफ ईएफ कितने आएंगे? बोलो बेटा. ऋतुपर्णा बताओ, क्लास में हो कि नहीं हो? रिस्पॉन्ड करो. सर सर ये वाला लेक्चर अभी जस्ट ज्वाइन किए हैं। अभी जस्ट ज्वाइन कियो, डिप्लोमा कियो ना? यस सर। कंट्रोल सिस्टम नहीं पढ़े थे? नो सर, डिप्लोमा नहीं था। अच्छा नहीं था, तो अभी क्यों ज्वाइन कियो? मैं तुम्हारी अटेंडेंस कब मार्क करूंगा? तुम्हारी अटेंडेंस तो सर मैं पिछले दूंगा नहीं. लेक्चर में थे सर। सर कोई फायदा अभी ये नहीं है, वाला लीव लेट कर गया दो, है। क्लास लीव कर दो, मैं अटेंडेंस नहीं दूंगा. कोई फायदा नहीं. नो सर काम था, बाहर गए कोई बात थे। नहीं, मैं रिमूव कर बैंक रहा हूँ. नेक्स्ट क्लास सर ज्वाइन बैंक करना. का काम चल रहा था। कोई बात नहीं, बैंक का काम करिए आप. जब अभी ज्वाइन कियो तो अभी क्यों ज्वाइन कियो? क्या फायदा उसको ज्वाइन करने का? लैब ज्वाइन करना सर 3-15 जैसे से. टाइम मिला ज्वाइन कर दिए। हाँ कोई बात नहीं, नेक्स्ट लैब होगी आपकी, आप ज्वाइन करिएगा. तो अगर मैं ईएफ की बात कर रहा हूं तो अगेन देयर विल बी वन पोल, टू जीरोस एंड बेसिकली टू पोल्स. तो देखिए आपके पास जो भी ऑड क्राइटेरिया है, द फर्स्ट वन इज योर ऑड क्राइटेरिया, फुलफिलिंग द ऑड क्राइटेरिया. उसके बाद जो थर्ड वन है दैट इज फुलफिलिंग द ऑड क्राइटेरिया. और जो फिफ्थ बेसिकली हमारे पास फिफ्थ कंडीशन है दैट इज फुलफिलिंग द ऑड क्राइटेरिया. अब बताइए, रिस्पॉन्ड करिए प्रॉपरली मुझे, ये क्राइटेरिया सबको क्लियर हो गया कि नहीं हुआ? बोलिए क्लास. यस सर। यस सर। तो ये जो था दैट वाज आवर थर्ड क्राइटेरिया. अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं रूल 4 की. सो रूल 4 ले लेते हैं हम लोग. ओके, लेट मी अडॉप्ट दिस. रूल 4 की अगर मैं बात करूं तो व्हाट इज रूल 4? हमारे पास तो इस ये जो है रूल दैट इज रिलेटेड टू एंगल ऑफ एसिम्प्टोट. तो एंगल ऑफ एसिम्प्टोट बेसिकली होता क्या है कि हमारे पास जो भी
ब्रांच टुवर्ड्स इंफिनिटी जा रही है वो किस एंगल पे जाएगी। जैसे कि मैं एंगल कैसे मेजर करता हूँ, पल्लवी पांडे आपको एंगल कैसे मेजर करना होता है, कैसे मेजर करते हैं हम लोग, पॉजिटिव एंगल कैसे मेजर करेंगे और नेगेटिव एंगल कैसे मेजर करेंगे। पल्लवी, पॉजिटिव एंगल कैसे मेजर किया जाता है, नेगेटिव एंगल कैसे मेजर किया जाता है। पल्लवी, ओके कोई बात नहीं। सैयद मोहम्मद अस्करी, सुमित कुमार तिवारी, सुमित कुमार तिवारी, यस सर। बताओ एंगल कैसे मेजर किया जाता है भाई। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग एंगल कैसे मेजर करते थे। सर पॉजिटिव वाला एक्स एक्सिस के ऊपर और वाई के राइट में। ठीक है, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैं जब मूव करता हूं तो दैट इज टेकन एज बेसिकली पॉजिटिव एंगल। पॉजिटिव एंगल। और अगर मैं इसके नेगेटिव एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा हूं, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज बेसिकली। क्योंकि ये पता नहीं होगा तो आप लोग को एंगल ऑफ एसिम्प्टोट में प्रॉब्लम आने वाली है, जहां नेगेटिव आएगा वहां परेशान हो जाएंगे। तो दिस इज क्लॉकवाइज and that will be taken as negative angle। तो बेसिकली देखिए, जैसे अभी मैंने जो रूट लोकस ड्रॉ किया था उसमें जो ब्रांचेस जा रही थी टुवर्ड्स इंफिनिटी, ये जो ब्रांच है दिस इज गोइंग टुवर्ड्स इंफिनिटी। ठीक है, तो ये ऐसे जाएंगी कि ये मेरे पास ब्रांच देखिए, कुछ ब्रांच मैंने एक फिगर ड्रॉ किया था जिसमें ये ड्रॉ हो रहा था, और एक फिगर और ड्रॉ किया था मैंने जिसमें कि मेरे पास जो एंगल ड्रॉ हो रहा था बेसिकली, तो वो क्या था कि यहां से मेरे पास स्टार्ट हो रही थी, दे मेट अप एट द रियल एक्सिस। ठीक है, और उसके बाद फिर एक इधर जा रही थी और एक इधर जा रही थी। तो ये कैसे पता चल रहा है कि व्हाट इज द एंगल दैट ब्रांच दैट पर्टिकुलर ब्रांच इज गोइंग टू फॉलो, ये बता रहा है हमको एंगल ऑफ एसिम्प्टोट। बेसिकली जो हमारी ब्रांच इंफिनिटी की तरफ जा रही है वो किस एंगल पे इंफिनिटी की तरफ जाएगी, दैट विल बी डिसाइडेड बाय द एंगल ऑफ एसिम्प्टोट। तो ये है हमारे पास रूल नंबर 4। क्लियर हो गया। एंगल ऑफ एसिम्प्टोट हमको क्या बता रहा है, क्लियर हुआ सबको। ठीक है, तो अभी देखते हैं, अभी हम लोग इसको थोड़ा सा, हमारे पास जो एंगल ऑफ एसिम्प्टोट होता है दैट विल बी गिवन एज हमारे पास एंगल ऑफ एसिम्प्टोट फाई ए इज गिवन एज 2q + 1 upon n - 1 m into 180 degrees. So this is angle of asymptote where n is number of poles and m is number of zeros. ठीक है, और ये q कहां से लाई करेगा, q is going to be lying from 0 1 up to n minus m minus 1। ठीक है, देखिए हमारे पास जो नंबर ऑफ बेसिकली मैं बात करूं जो ब्रांचेस इंफिनिटी की तरफ जा रही थी, दोज वर बेसिकली n minus m। ठीक है, और उन्हीं के लिए बेसिकली हम लोग कैलकुलेट करेंगे एंगल ऑफ एसिम्प्टोट। जो ब्रांचेस है बेसिकली, देखिए अभी हमने बात की कि हमारे पास जो रूल नंबर 2 था उसमें बोला गया कि हमारे पास जो ओपन लूप बेसिकली जो रूट लोकस होगा दैट विल स्टार्ट एट द ओपन लूप पोल एंड विल ईदर एंड एट 0, जो ओपन लूप 0 है, या फिर दे विल एंड अप एट इंफिनिटी।
तो जो जीरो होगा दैट विल बी इधर लाइंग इन कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लीमेंट्री पोजीशन या फिर दैट विल बी लाइंग ऑन द रियल एक्सिस। तो उसके लिए तो मुझे डायरेक्ट जो है पोल की जो हमारे पास पोजीशन होगी उससे डायरेक्टली मैं कनेक्ट कर दूंगा, एंड दैट इज नॉट बेसिकली दैट इज गोइंग टू जो भी हमारे पास होगा लाइन होगी दैट आई कैन फॉलो अप। बट जो हमारे पास लाइंस टुवर्ड्स इंफिनिटी जा रही हैं वो किस एंगल पे जाएंगी ये जब तक मुझे नहीं पता चलेगा, देन आई कैन नॉट कंप्लीटली ड्रॉ दैट पर्टिकुलर रूट लोकस। तो इस वजह से मुझे एक जो कंडीशन डिफाइन करनी पड़ी दैट इज एंगल ऑफ एसिम्प्टोट, कि हमारे पास जो भी लाइंस टुवर्ड्स इंफिनिटी जा रही हैं वो किस एंगल पे जाएंगी। ठीक है, क्लियर हो गया। इसका एग्जांपल लेने के लिए देखिए हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं। अभी देखिए जैसे अच्छा प्रीवियस एग्जांपल ले लेता हूं। तो मेरे पास देखिए ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है। यहाँ पे देखिए मेरे पास फाई ए जो आएगा दैट विल बी 2q + 1 इंटू 180 डिग्री और n माइनस m जो आएगा दैट इज देखिए n इज 3 - 2 एंड दैट इज गोइंग टू बी 1। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे मेरे पास दिस इज गोइंग टू बी 2q + 1 इंटू 180 डिग्रीज। अब q की वैल्यू क्या है? q की वैल्यू है दिस इज गोइंग टू बी 0 से लेके मेरे पास कहां तक है n - m - 1 तक। तो n - 1 n - m is 3 - 2 -1 and that is going to be 0. So the q will be holding only one value 0. अब देखिए यहाँ पे so I will be having asymptote angle of asymptote is going to be 180 degrees. ये क्लियर हो गया? इतना क्लियर हुआ जो हमने कैलकुलेशन किया? इसके बाद मैं क्लियर कर रहा हूँ आपको। ये चीज कैलकुलेशन क्लियर हो गई? बोलिए, रिस्पॉन्ड करिए। यस सर। आप देखिए मैंने ये फाइंड आउट कर लिया कि विच पार्ट ऑफ द बेसिकली जो हमारे पास रूट लोकस है दैट इज गोइंग टू बी लाइंग ऑन द रियल एक्सिस। तो इसको लेते हुए अब हम लोग ड्रॉ करते हैं इसमें जो हमारे पास वो है। लेट मी ड्रॉ दैट रूट लोकस। आप लोग को तब क्लियर हो जाएगा ये सब चीजें। ओके, so this was my graph. देखिए अभी जब मैं इसका जब ड्रॉ करूंगा, क्योंकि इसको भी इरेज कर देता हूं मैं। So if I am going to draw the root locus, देखिए मेरे पास एक पोल है at origin, तो उसके बगल में एक 0 है। When I am going to draw the root locus, तो होगा क्या कि this s is equal to 0 pole will start moving towards left. राइट नहीं जा सकता है वो। क्यों नहीं राइट जाएगा? क्योंकि राइट जैसे ही जाएगा मेरा सिस्टम जो है वो अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो इट विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स लेफ्ट एंड जैसे ही लेफ्ट पे पहुंचेगा देयर इज अ 0 एंड इट विल गेट टर्मिनेटेड एट दैट पर्टिकुलर 0 एट s इक्वल्स टू -1। सिमिलरली मेरे पास जो बेसिकली पोल होगा एट s इक्वल्स टू 3 दैट विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स राइट, क्योंकि देखिए अभी मैंने डिसाइड किया था कि AB जो है वो लाई करेगा, CD जो है वो लाई करेगा और EF जो है वो लाई करेगा ऑन द रूट लोकस। तो बेसिकली ये पार्ट जो है बेसिकली बिटवीन पोल बिटवीन जो जीरोस हैं s इक्वल्स टू -1 एंड s इक्वल्स टू -2, दोज आर नॉट गोइंग टू लाई ऑन द रूट लोकस। सो और उसके बाद बीच में D E और E के बीच में भी जो है वो नहीं लाई करेगा। तो बेसिकली ये लेफ्ट राइट टुवर्ड्स द लेफ्ट नहीं मूव कर सकता है। द पोल s इज इक्वल्स टू -2 इज गोइंग टू मूव टुवर्ड्स द राइट। तो ये इस तरह से राइट की तरफ मूव करेगा और जैसे ही मूव करेगा देयर इज अ 0, इट विल गेट टर्मिनेटेड एट दैट पर्टिकुलर 0। अब बचा